when we talk about production, we should also understand कि कोई भी टेलीविजन प्रोडक्ट, चाहे वो एक ड्रामा हो या वो कोई एक न्यूज शो हो या कुछ भी, एनीथिंग, इवन नॉन टेलीविजन प्रोडक्ट, लाइक अगर आप व्लॉग भी बना रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है. So that process, which we call production process, is the next topic that we are going to discuss. Production process मैंने जितना simple words में explain कर सकती थी इन slides में explain किया हुआ है, but of course that is not all that goes into production. So generally what really happens that we ask students to produce something, a short report or something like that, तो उस process से गुजर के उनको idea हो जाता है कि हमने किस तरह से काम करना है. But अभी इस semester में we don't have much resources, so I did not plan anything like this. But when we talk about production in general, कोई भी production, चाहे वो television की हो या even radio की भी हो for that matter, even if you are making a vlog or a YouTube video, so उसके 3 phases होते हैं. You have to go through 3 phases of production. Those are phase number 1, pre-production, then phase number 2, which is called production, and at times it is also called principal photography, and phase 3 is your post-production phase. So all the steps that you take starting from the idea generation, जहाँ पे आपको एक idea आता है कि इस चीज के ऊपर एक show होना चाहिए, till the time it goes on air on television, वो सारा का सारा process को हम उन 3 phases में define कर सकते हैं. कौन सा phase कितने अरसे तक चलेगा, that really depends on the kind of production that you are doing. ठीक है. So जो आपकी daily shows आते हैं उसकी तो पोस्ट प्रोडक्शन साथ साथ ही हो रही होती है, उसमें इतना टाइम नहीं लग रहा होता. बट जो आप सीरीज देखते हो डेफिनेटली उसकी प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और सारी जो शूटिंग होती है, दैट टेक्स मंथ्स ऑफ प्रेप और उसके बाद मंथ्स ऑफ शूटिंग एंड देन अगेन अ फ्यू मंथ्स फॉर एडिटिंग एंड स्टफ. सो दैट रियली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट. बट जनरली ये सारे स्टेप्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स में आपको, टेलीविजन प्रोडक्ट्स में या प्रोडक्शंस में आपको नजर आएंगे. So starting with the pre-production. So pre-production is basically the preparation stage, the planning stage for your product. It refers to the work done on your product before the full-scale production begins. So this start on a television channel जब आप एक idea generate करते हो कि ये next program है that we want to do. When you are working in any specific television channel, so what really happens there, that there is a production department or a product development department. तो मिलके इसके ऊपर काम शुरू करते हैं कि हम लोग कौन से shows जो हैं हमें मजीद अब बनाने चाहिए. उसमें they have their research and development wing जिसमें वो देखते हैं और channels पे क्या चल रहा है, तो now we should also do that. And then of course they assign a team to this. तो कोई producer होगा जो उस पे काम करना start करेगा. But if you are not working in a setup like आप किसी television के साथ associated नहीं हो, तो definitely आप जो है वो individually as a like freelancer भी काम जो है वो start कर सकते हो. तो जो हमारे television के dramas generally होते हैं वो production houses खुद बनाते हैं. तो production houses का भी process होता है that they will start on the idea generation. उसके ऊपर काम होता है, उसकी feasibility देखी जाती है कि ये चीज बिकेगी भी या नहीं, चलेगी भी या नहीं, and then they start working on those things. इसमें research की जाती है और फिर बाकी आगे के जो steps हैं वो देखे जाते हैं. This is basically a phase where you are going to make really important decisions on what you want the program to look like. ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगी कि प्रोग्राम क्या है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड काम करना है या करंट अफेयर से रिलेटेड काम करना है, वो लाइव होना चाहिए या रिकॉर्डेड होना चाहिए, उसको हम आउटडोर में शूट करेंगे या स्टूडियो में शूट करेंगे या दोनों मेथड्स हो सकते हैं. ठीक है, उसके लिए हमने टीम कौन सी सिलेक्ट करनी है, अगर वो कोई सीरीज है तो उसकी कास्टिंग करनी है, तो आपके कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो उसमें हेल्प करते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स. तो वो सारी डिसीजन जो है वो आपको इस प्री प्रोडक्शन की फेज में करनी होती है डिसाइड. दिस इज द की स्टेप इन द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड इफ डन वेल द अदर 2 स्टेजेस बिकम्स इजी एंड वर्केबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे यहाँ जनरली जो है वो प्री प्रोडक्शन पे लोग इतना काम नहीं करते. चैनल्स में ये एक ओवरऑल कल्चर है दैट दे वुड से ओह फलाना चैनल पे बड़ा अच्छा गेम शो आ रहा है, चलो जी हम भी स्टार्ट कर देते हैं. एंड दे वांट वर्क अ लॉट ऑन प्री प्रोडक्शन, क्योंकि उनको उनके मालिक ने कहा होता है कि आपने 2 हफ्ते में शो लॉन्च करना है. बट समहाउ अगर वो जो पहले से प्रेप नहीं करते हैं उसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनती है. प्लानिंग स्टेज इज क्वाइट नेसेसरी. Like anything that we do in life, चाहे आपके एग्जाम्स हो
या आपने कोई असाइनमेंट बनानी हो, इवन इफ यू आर गोइंग टू कुक समथिंग, सो उसकी जो प्लानिंग होती है इनिशियली, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेप मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज द की. सो प्री प्रोडक्शन इज द की इन द एंटायर प्रोसेस, बिकॉज इफ यहाँ पे आपने अच्छी तरह से सारी प्लानिंग कर ली है, देन आपका आगे का काम रिलेटिवली आसान हो जाएगा. नाउ ये पीरियड कितने अरसे तक रहता है, महीना लगता है या 2 दिन लगते हैं या 1 दिन लगता है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्शन दैट यू आर डूइंग. सो दोज टेलीविजन शोज, जैसे हाउ मेनी ऑफ यू वॉच कैपिटल टॉक बाय हामिद मीर? इसमें मैं देखता हूँ. Yeah, so there might be a few of you because that is a popular show that way. So वो जो शो है, या कोई और चैनल पे जो ये डेली प्रोग्राम्स आते हैं, शाहजेब खान ज़ादा का प्रोग्राम आता है फॉर दैट मैटर, या दूसरे आते हैं, सो दे आर क्वाइट यू नो रेगुलर, रोज आती हैं वो प्रोग्राम्स. एंड उसमें आपका प्री प्रोडक्शन जो है, जब 1-2 दफा प्लान शुरू में प्रोग्राम प्लान हुआ है तब हो गई है, उन्होंने तब शायद उसमें महीना लगा दिया है, बट ईच एपिसोड के लिए जो प्रोडक्शन है उसमें इतना टाइम नहीं लगता. सो व्हाट दे यूजुअली डू कि अगर हामिद मीर ने अपना शो खत्म किया है, आज का वो खत्म करेगा अपना 9 बजे, सो ही वुड be there in the studio for quite some time next day के प्रोग्राम की प्रिपरेशन करने के लिए. ऑफ कोर्स इनके पास रिसर्च टीम्स होती हैं, उन्होंने पहले से भी काफी प्रिपरेशन की होती है, और अगले दिन भी वो जो भी उनका टाइम है, जिस भी शिफ्ट में वो काम करता है, प्रॉब्ली रात के शिफ्ट में, तो वो जब आएगा तो उस पे उसी वक्त काम शुरू करेगा. सो टेक्निकली उस एक एपिसोड के लिए जो आपका टाइम है, जो प्री प्रोडक्शन का टाइम है, वो 1 ही दिन लग रहा है. या अगर रिसर्च बहुत ही कोई हार्डकोर टॉपिक है तो रिसर्च 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाएगी, बट उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता. बट कंपेयर इट विद प्रोडक्शन जो कि थोड़ी हाई माउंटेड स्केल पे हो, फॉर एग्जांपल अ टेलीविजन ड्रामा. तो ड्रामे की जो प्रोडक्शन है, डेफिनेटली उसमें आप जब आइडिया सोचते हो दैट मे बी दिस इज द नॉवल दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, और फिर आप उसके लिए एक राइटर लेकर आते हो जो स्क्रिप्ट लिखता है. स्क्रिप्ट लिखने में बड़ा टाइम लगता है. देन यू डिसाइड अपॉन द टीम, डायरेक्टर्स होते हैं आपके, एक्टर्स आप डिसाइड करते हो, अगर उसमें कोई सेट डिजाइन लगाना है तो वो होगा, अगर रिहर्सल्स करनी पड़ रही हैं तो रिहर्सल्स होंगी, लोकेशन की रखी होगी. तो जिस तरह वो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी ऑन इट स्केल, वो जो टाइम है वो उसका ज्यादा लगेगा. दोज ऑफ यू हु फॉलो मूवीज, तो आपको आइडिया होगा कि जब ये मार्वल और डीसी वाले अपनी मूवीज अनाउंस करते हैं, नेक्स्ट सुपर हीरो मूवी जो भी उनकी आ रही होती है, तो दे अनाउंस इट लाइक 2-3 years in advance. और वो जो 2-3 years in advance करते हैं, उस सारे अरसे में उनका जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस, प्री प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. दे आर लाइक क्लियरली ह्यूज स्केल प्रोडक्शन. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज देयर. जनरली न्यूज और करंट अफेयर शोज में अगर वो डॉक्यूमेंट्रीज नहीं है, डेली बेसिस के शोज हैं, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगता, बट एंटरटेनमेंट के शोज होते हैं उसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है इन दिस फेज. Some of the key steps that you see in the pre-production phase are the idea generation. Idea क्या है मेन प्रोग्राम का, उसके बारे में जितनी भी रिसर्च होनी है, that scripting, then storyboarding and screenplay. So storyboarding and screenplay only applies to the kind of shows जो कि entertainment में आते हैं, जैसे television dramas, या advertisements के लिए भी आपकी storyboarding होती है. स्क्रीन प्ले मूवीज के लिए लिखा जाता है. अदरवाइज जो आपके ये वाले शोज हैं, करंट अफेयर के शोज, डेली शोज, उसमें इसकी जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो सारा रियल टाइम हो रहा होता है. सो दे मेक अ प्लान कि उन्होंने क्या क्या बोलना है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, बट वो स्टोरी बोर्डिंग के एक एक शॉर्ट की लिस्ट बनानी, वो नहीं होता. इसके अलावा बजटिंग एंड फाइनेंसिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी इस फेज में फाइनलाइज किया जाता है. अगर टेलीविजन चैनल का अपना शो है तो डेफिनेटली वो खुद से फाइनेंस करते हैं, बट इफ इट्स एन इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन, तो प्रोड्यूसर एक्चुअली लुक्स आउट फॉर फाइनेंसेस. अगर वो खुद फाइनेंस नहीं कर रहा, तो यू नो वो जाएगा डिफरेंट फाइनेंसेस के पास और वो सारी चीज देखी जाएगी. इसके अलावा बजटिंग भी डिसाइड होती है कि कितना जो है इसमें पैसा लगेगा एट द एंड ऑफ द डे. सिलेक्शन ऑफ कास्ट एंड क्रू, उसमें ऑडिशनिंग, हायरिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. Discussion with all the crew members and talent. So generally, specifically अगर fictional shows हैं तो बहुत ज़्यादा discussion शुरू हो जाती है crew members के साथ, readings होती हैं daily basis पे, बाकी जो talent होते हैं उनके साथ discussions होती हैं कि किस तरह से हमने shoot करना है and all of that.
इसके अलावा इक्विपमेंट की अरेंजमेंट, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली अगर आप चैनल पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि यू हैव टू हायर इक्विपमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। तो हमने कौन कौन सी इक्विपमेंट लेनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग, प्रोडक्शन की पूरी स्केड्यूलिंग, ये जो जितनी भी बहरहाल चीजें मैं बता रही हूँ, इन सब के लिए अलग अलग लोग काम करते हैं। सो दीज आर ऑल्सो डिफरेंट जॉब्स that perhaps you can also do in the media, because प्रोडक्शन स्केड्यूल के लिए आपके प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो काम करते हैं, सेट डिजाइनर्स अलग होते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स अलग होते हैं, ये लोग पहले से काम करना शुरू कर देते हैं चीजों के ऊपर। इसके अलावा यू ऑलवेज आल्सो डिसाइड अपॉन द विजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द शो। अगर कोई ग्राफिक्स, कोई वीएफएक्स इंक्लूडेड उसमें है, कोई एनिमेशन डालनी है, तो वो भी प्री प्रोडक्शन में जो है वो डिसाइड किया जाता है। स्पेसिफिकली जो एनिमेटेड शोज होते हैं उनकी तो प्री प्रोडक्शन ही सालों सालों तक होती रहती है, बिकॉज दैट इज ऑल दे हैव टू शो एनिमेशन। तो वो पहले से स्पेशल इफेक्ट्स के ऊपर उसकी डिजाइनिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स योर रिहर्सल्स एंड स्क्रिप्ट रीडिंग्स विद द कास्ट, ये चीजें भी जो हैं वो आपके प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है। एक चीज बहुत जनरली कही जाती है विच इज कॉल्ड प्रोडक्शन मीटिंग्स। सो इन सब कामों में जो आपने मुख्तलिफ लोगों से कोऑर्डिनेट करना है, तो उसके लिए जनरली होता ये है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे कॉल ऑल द टीम एंड ऑल द क्रू, तो के रेलिवेंट उस दिन के टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने बात करनी है, तो वो उनसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसको एक प्रोडक्शन मीटिंग कहा जाता है। इट कुड बी अ वेरी ब्रीफ मीटिंग, लाइक कैपिटल टॉक की अगर प्रोडक्शन मीटिंग है तो हो सकता है वो शो शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले कर लें, वो 5 मिनट के लिए डिस्कस करें कि आज ये चीज करनी है। दैट इज जस्ट लाइक अ री अश्योरेंस ऑफ ऑल द थिंग्स जो वो डेली बेसिस पे करती है। तो वो कैमरा मैन को बता देगा, प्रोड्यूसर क्या आपने आज ये एंगल्स लेने हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है, वो रोज ये काम कर रहे हैं, बट स्टिल प्रोडक्शन मीटिंग्स में ये चीज जनरली होती है। और यूजुअली एट द एंड ऑफ द शो भी थोड़ी सी एक प्रोडक्शन मीटिंग कॉल की जाती है। बट जो आपके फिक्शनल शोज होते हैं उनकी प्रोडक्शन मीटिंग जो है वो बहुत लाइक अरसे पहले से ही ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज दे वांट एवरीबॉडी टू बी ऑन द सेम पेज। So ये method even when you will be making some projects in future for mass comm courses, so आपके लिए आप जरूर utilize करना, because that would help you out in identifying the issue. जब जितना आप communicate करते हो अपनी टीम के साथ, उतनी easily आपको पता चलता रहता है कि आपने किस तरह जो है overall production जो है वो देखनी। Okay, so these are the steps, key steps for pre-production phase. Now the production phase, जब आप set पर आ गए हो और अब आपने shooting start करनी है, which we generally think is all that goes into making a product, but basically this is just one of the 3 phases. So this phase starts at the shoot, जहाँ पे आप स्टूडियो में आ गए हो या लोकेशन पर आ गए हो, and now you have to start your shooting, and the entire cast and crew is now coming together and they will start shooting your project. ठीक है, इसमें generally होता क्या है, the thing which is done is basically shooting, जिसको हम principal photography भी कहते हैं. This is the phase where all the filming and all the taping will be done. ठीक है, so this again depends on the kind of production which is there. If it's a news bulletin or a current affair show, so वो तो आपके सामने live या live to tape format पे जा रहा है, वो साथ साथ shoot हो रहा है और साथ साथ आप देख रहे हो. But if it's a drama series, तो definitely उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत पहले से हो जाएगी। सो वो सब कुछ शूट करके अपने पास रखेंगे, कुछ महीने तक उसकी एडिटिंग करेंगे, एंड देन इट विल गो ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। सो दिस डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्शन अगेन, कि कितना टाइम इसमें लगता है। सो जनरली जो आपकी हाई माउंटेड प्रोडक्शन होती है वो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है टू शूट एवरीथिंग। इसमें अगेन काफी टेक्निकल चीजें होती हैं। सो जो आपका प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होता है, another thing which you might see in television, generally जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर वो है जो शॉर्ट्स बनाता है और वो सब कुछ खुद से शूट करता है एंड ऑल। वो चीजें जो है वो फिक्शनल शोज में, यानी कि जो आपके एंटरटेनमेंट बेस्ड शोज है, उसमें ज्यादा टर्म यूज होती है डायरेक्टर की। बट जब आप न्यूज और करंट अफेयर्स की बात करते हो तो जनरली प्रोड्यूसर्स ही वो सारा काम कर रहे हो। तो they don't have a separate role for a show director. वो आपका जो प्रोड्यूसर है वही बेसिकली हैंड्स ऑन सारा काम कर रहा होता है। लेकिन ड्रामाज में थोड़ा डिफरेंट सीन होता है, उसमें प्रोड्यूसर वो होता है जो बेसिकली पैसा लगाता है और डायरेक्टर वो होता है जो बाकी आपकी प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट करता है। सो प्रिंसिपल फोटोग्राफी इज वेयर द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर इज डिसाइडिंग अपॉन ईच शॉट, ईच सीन। कुछ चेंज करना है स्क्रिप्ट में तो उस वक्त वो चेंज होगा। सेट डिजाइन फाइनलाइज हो गया है और साथ साथ प्रॉप्स किस तरह यूज करनी है, ये सारी चीजें आप साथ साथ कर रहे होते हो।
इसमें जो है देर आर डिफरेंट थिंग्स के वो लाइव है या रिकॉर्डेड है, और अगर वो लाइव जा रहा है तो आपने वो कहाँ से सब कुछ ऑपरेट करना है, वो एक जगह होती है, उसको पीसीआर कहा जाता है। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है उस यूट्यूब वाली वीडियो में, सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो फॉर मोर क्लैरिटी ऑन द शूटिंग ऑफ स्पेसिफिक टेलीविजन प्रोडक्शन। सो वो आप उसमें देख लेना, बाकी ऑफ कोर्स आई कैन टेक योर क्वेश्चंस कल। अच्छा जी, प्रिंसिपल फोटोग्राफी के जो key steps हैं, so here you have to manage all the facilities if it is being shot in a studio and if it is shot on a location, both ways आपने वहाँ पे जितनी facilities होती हैं उनको handle करना होता है, आपका crew और आपका talent होता है सारा। Talent means everybody who's working on a specific production, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या वो जो आपका कैमरा पर्सन हो या आपके एक्टर्स हो, तो उनको हम क्रू एंड कैमरा क्रू और क्रू या ओवरऑल जो कास्ट एंड क्रू है वो कहा जाता है, ठीक है। सो उनको मैनेज करना इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड देन शूटिंग विदाउट एनी हर्डल्स, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर शूटिंग ऑन लोकेशंस और द क्राउड इंक्लूडेड है, तो वो किस तरह उनको हमने मैनेज करना है ये भी देखा जाता है। देन इट आल्सो रिक्वायर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, उसने ही जो है वो शॉट्स कॉल करनी है कि मैंने किस तरह से फिल्म करना है सब कुछ। So that is something which is taken care of during the production. Then applying various lighting requirements and working on a scene composition while shooting. So again scene composition I have told you कि हर scene जो है basically वो different shots में divide होता है। If there is a scene जहाँ पर आप दो लोगों को आपस में बात करता हुआ दिखा रहे हो, तो actually वो उसमें different shots होते हैं, so they would be taking शॉट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, कभी किसी का क्लोजअप लिया जाएगा, कभी दोनों को एक साथ फ्रेम में दिखाया जाएगा, कभी जो है वो सिर्फ कोई किसी और चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। सो वो सारी जो शॉर्ट कंपोजिशन होती है वो उस वक्त डिसाइड की जाती है। लाइटिंग भी जो है जनरली डिजाइन हो जाती है चीजें पहले से स्टोरी बोर्डिंग में, बट बहरहाल उस वक्त जो है वो डायरेक्टर अपनी पसंद के मुताबिक चेंज भी कर सकता है। लाइटिंग रिक्वायरमेंट चेक की जाती है। लाइटिंग फॉर एनी टेलीविजन प्रोडक्शन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूजुअली शूट, लाइक अगर हम अपने मोबाइल फोन्स पे कर रहे होते हैं तो वी डोंट केयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर आप किसी लोकेशन पे जा रहे हो तो आपने बहुत ज्यादा चीजें देखनी है कि यू नो सनलाइट कहाँ से आ रही है, फेस पूरी तरह से लिट हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये चीजें कैमरा पे बहुत ज्यादा अपीयर होती हैं प्रोमिनेंटली इफ देयर इज अ मिस्टेक इन दैट। स्टूडियो लाइटिंग भी थोड़ी डिफरेंट होती है, वो काफी कस्टमाइज्ड होती है तो इजीली मैनेज हो जाती है, लेकिन ऑन लोकेशन लाइटिंग में प्रॉब्लम होती है। इफ यू आर शूटिंग इन द प्लेस जहाँ पे बहुत क्लाउडी हुआ है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो ये सब चीजें भी पहले से देखी जाती है। इसके अलावा जो है आपका बी रोल जो है वो फिल्म किया जाता है during this entire production process. This is another technical term and I think I have not even explained it in the video. So B-roll is basically whenever you are shooting something तो दो चीजें होती हैं, एक चीज A roll होती है और एक चीज B roll होती है। Can you give me an example? Can you give me a situation? कोई भी situation में भी किसी ड्रामा में से अगर कोई मुझे सजेस्ट करना चाहे। मैम वो एक था कि जो जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ये एक सिचुएशन थी। ठीक है, सो या दिस इज प्रीटी गुड। सो आपने सीन क्या शूट करना है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, राइट, एंड नाउ एंड यू आर परहैप्स गोइंग टू यू नो शूट इट इन ऑन सम हाईवे, ठीक है, आप शूट कर रहे हो। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं? सो पहली चीज तो ये है कि सीन इतना सा ही है कि एक प्रोटैगनिस्ट है, वो एक हाईवे पे गाड़ी चला रहा है और उसके सामने ट्रक आया है और वो ट्रक से हिट हुआ है एंड द सीन एंड। सो प्रोबेबली इट्स अ सीन जो कि 15 सेकंड का होगा, बट इसके अंदर आपने कितने शॉट्स लेने हैं? आपने एक शॉट लेना है ओवरऑल हाईवे का, ताकि ये मेंटेन हो जाए कि ये इस वक्त किसी शहर से बाहर किसी जगह पे जो है प्रोबेबली जा रहा है। सो एक ओवरऑल मास्टर शॉट कहलाता है, जहां पर आप एज प्रोटैगनिस्ट को नहीं फोकस कर रहे होते बट ओवरऑल एनवायरनमेंट को फोकस कर रहे होते। सो दैट इज वन शॉट। देन यू आर यू नो you have another shot, you switch to inside the car जहाँ पे आप उसको ड्राइव करते हुए दिखा रहे हो एंड यू नो यू आर शोइंग कि वो बहुत तेजी से स्टीयरिंग चला रहा है, which means कि वो जल्दी में और रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है। सो वो 2-3 शॉट्स उसके आप इस तरह दिखा दोगे मूविंग, ये भी शॉट्स है। एंड देन यू वुड हैव अनदर शॉट जिसमें आप दिखाओगे कि सामने से ऑपोजिट साइड से जो है एक ट्रक आ रहा है एंड देन देयर वुड बी अनदर शॉट जिसमें वो आपको हिट होती हुई गाड़ी दिखाती है।
राइट. सो दीज आर प्रॉब्ली एंड प्रॉब्ली एक और शॉट होगा कि गाड़ी का जो है वो रंबल सा पड़ा हुआ है और मलबा बिखरा हुआ है एंड काइंड ऑफ थिंग्स. सो ये एक सिचुएशन थी कि बंदे का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से टकरा के, गाड़ी का उसकी, बट इसमें हमने 7-8 शॉट्स डिफाइन कर लिए हैं एंड हो सकता है इससे ज्यादा शॉट्स की भी गुंजाइश हो डिपेंडिंग ऑन के स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है. ये भी हो सकता है कि एक सीन में एक शॉट में वो दिखाई कि वो फोन उसका बचा है और उसने वो उठाने के लिए अपना ध्यान उधर किया है तो उसका एक्सीडेंट हो गया है, राइट. सो इसमें द प्लेस वेयर प्रोबेबली इफ देयर आर डायलॉग्स इन दिस सीन, इस सीन में वैसे डायलॉग्स ऐसे जितने नहीं है बट मेजर फोकस जो है वो उस कैरेक्टर के ऊपर है. सो वो कैरेक्टर के अलावा जो भी शॉट्स दिखाए जा रहे हैं उसको हम बी रोल कहते हैं. So if there is a person who is talking, who is saying a dialogue in a specific scene, so वो dialogue आपकी story reveal कर रहा है, वो आपका A रोल है, वो आपने शूट करना है. बट उसके अलावा आप जो कुछ भी शूट कर रहे हो उस लोकेशन पे टू enhance your storytelling, that would be called your B role, like the second role which you would finally insert while doing the editing, and that will enhance the overall process. ठीक है. सो डायलॉग हो सकता है कि वो उस वक्त फोन पे किसी से बात करता हुआ ड्राइव कर रहा हो और फोकस उस डायलॉग पे है, ऑडियंस भी वही देख रही है. लेकिन अगर आप साथ में बाकी इधर उधर की चीजें नहीं दिखाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसका स्पीडोमीटर का एक शॉट ले लेते हो कि वो 120 की स्पीड पे पहुंच गया है व्हाइल टॉकिंग, सो दैट विल एनहांस द स्टोरी टेलिंग बिकॉज ऑडियंस को पता चलेगा कि अच्छा बेसिकली इसका ध्यान फोन पे भी था और ये बहुत स्पीडीली ड्राइव कर रहा था, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड. या आप जब ट्रक का शॉट दिखाओगे तो वो ट्रक तो ऐसा डायलॉग नहीं बोल रहा, ना ट्रक ड्राइवर को कोई डायलॉग बोलते हुए दिखाना है, बट वो एक बी रोल है बिकॉज वो आपको बताएगा कि इसका एक्सीडेंट किस चीज से हुआ है. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू एनहांस द ओवरऑल स्टोरी टेलिंग प्रोसेस. कोई भी मूवी, कोई भी ड्रामा, वो उसमें बी रोल्स ए रोल्स दोनों मिलके ही स्टोरी टेलिंग प्रोसेस जो है वो एनहांस करते हैं. अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चीज को बताना सही तरीके से. जो आपके न्यूज है या जो आपका टेलीविजन पे करंट अफेयर शो आ रहा है उस पे बी रोल्स की इतनी गुंजाइश नहीं होती, होते हैं पर इतनी गुंजाइश नहीं होती जनरली. तो आपके सामने हामिद मीर और पैनलिस्ट है, वो बातें कर रहे हैं, वो उन्होंने थ्रू आउट द शो बोलना ही है. हाँ डेफिनेटली उसमें ये हो सकता है कि वो बीच में कोई रिपोर्ट दिखाएं जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो हम उसको जो है वो बी रोल कंसिडर कर लेते हैं. बट अदरवाइज बी रोल इज समथिंग, बी रोल इज बेसिकली द एक्स्ट्रा फुटेज दैट यू आर गोइंग टू शूट on the location or within the studio, which is going to enhance the overall process of the storytelling, whatever you are trying to say. So ये जो process है कि आपने shorts बनाने और आपने B-roll भी shoot करना है, ये भी आपका प्रोडक्शन में ही होता है जनरली उसी दिन या उसी वक्त साथ साथ. अगर प्रोड्यूसर, अगर डायरेक्टर खुद मेजर शॉट्स ले रहा है तो वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को यूजली बी रोल शूट करने को दे देगा. If the director is showing a girl sitting on in a park and doing a painting, ठीक है, वो ट्री की पेंटिंग बना रही है, तो उसमें जो है वो शायद अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को कहते हैं कि वो पेंट करते हुए सिर्फ उसका हाथ आए और पेंटिंग हो रही हो, इसके थोड़े से बी रोल्स भी साथ में शूट कर लेना, हम लोग बाद में इसको इंसर्ट कर देंगे. तो इस तरह के डिफरेंट जो है वो मेथड बहरहाल यूज होते हैं. एंड व्हेन यू विल बी शूटिंग सम ऑफ योर प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर होपफुली, सो आप भी इन चीजों का ख्याल रखना बिकॉज दैट एनहांसेस द ओवरऑल एक्सपीरियंस. Okay, so this was your production process or the time when we are finally doing shooting. Then it's post production. अब post production start कहाँ से होगा? The time when your shoot ends, चाहे वो एक episode end हो गई है या पूरा ही आपने एक documentary बनाई थी वो end हो गई है और अब उसकी editing की जरूरत है. Without editing, without doing the garnishing of the recipe, जनरली आपने जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो वो अच्छा नहीं लगता जब तक उसको अच्छी तरह से नोक पलक ना सवार ली जाए. सो दैट इज द थिंग व्हिच इज डन इन पोस्ट प्रोडक्शन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड जस्ट पोस्ट. लाइक अक्सर मीडिया में लोग इसको कहते हैं कि हम पोस्ट पे जा रहे हैं. So post would mean that they are now going for the editing and the third phase has started. So this phase starts from completion of filming and continues until the project is delivered to the network for airing. लाइक जब तक वो चैनल को फाइनल प्रोडक्ट नहीं तब तक आपका पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट रहती है. या अगर वो कोई मूवी है तो जब तक वो सिनेमा में नहीं लग जाती, यूजुअली 1 या 2 दिन पहले तक भी उसकी पोस्ट प्रोडक्शन का कोई ना कोई काम रुका होता है और वो कंप्लीट कर रहे होते हैं. इन दिस प्रोसेस व्हाट यू डू, आप अपना सारा जो फुटेज है वो असेंबल करते हो, उसको एक सीक्वेंस में लेकर आते हो, ठीक है, एंड देन यू
लाइक टू enhance it, उसमें डिफरेंट किस्म के ग्राफिकल एलिमेंट्स लगा के, अगर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो वो आप डिसाइड करते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक चलाते हो और ओवरऑल उसकी एडिटिंग करते हो। ड्रामाज में अगेन एडिटिंग काफी ज्यादा होती है, बिकॉज वो एक तो सिंगल कैमरा फॉर्मेट पे शूट हुए होते हैं, दे आर नॉट लीनियर, वो नॉन लीनियर वे में शूट होते हैं, तो सब कुछ असेंबल करना और उसमें से फुटेजेस काम की निकालना और जो एक्स्ट्रा फुटेज है उनको माइनस करना, कोई कलर एनहांसमेंट है तो वो करना, बाकी अगर वीएफएक्स डालना है तो उस सब में काफी टाइम लगता है। बट आपके जो लाइव शोज होते हैं या लाइव टू टेप शोज होते हैं, सो लाइव शोज आर समथिंग जो कि उसी वक्त आपको नजर आ रहा है जिस वक्त वो हो रहा है, जैसे पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है या देयर इज अ फुटबॉल मैच गोइंग ऑन, सो वो जिस तरह सामने नजर आ रहा होता है वो रियल टाइम ही होता है, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह सच नहीं होती, और अगर कोई एडिटिंग भी हो रही होती है तो वो रियल टाइम हो रही होती है। और लाइव टू टेप शोज वो होते हैं जो अपीयर तो इसी तरह होते हैं जैसे अभी आप लाइव देख रहे हो, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइव, बिकॉज उसमें थोड़ा सा डिले होता है बिटवीन द टाइम ऑफ शूटिंग एंड द टाइम ऑफ time it gets on air, so it could be a difference of seconds and it could be a difference of a few minutes and even 2-3 hours, but not more than that. तो इन तो आप शोज देखते हो हामिद मीर और शाहजेब खान ज्यादा टाइप की, आपको क्या लगता है ये लाइव जा रहे होते हैं? एनी आइडिया? No, ma'am, they are live to tape. Mostly मैम recorded होते No, हैं। ma'am, they are not live. They are not live, but they are not. Ma'am, there's a difference between about 2-3 minutes. Yeah, there is a difference. Actually, the difference जो पैमरा ने अभी बताया हुआ है वो तो उन्होंने कहा है कि आप 7 to 10 seconds का डिले रखा करो अपनी ट्रांसमिशन में, बट ये वाले जो शोज होते हैं ये जनरली से 10 मिनट पहले से वो थोड़ा सा शूट करना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर आजकल के जमाने में, ताकि अगर बीच में कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए कि इस चीज को निकालना हो तो वो टाइमली तौर पे निकाल सके। सो दे अपीयर एज इफ दे आर गोइंग लाइव, उसी वक्त जा रहे हैं, बट वो बिल्कुल लाइव नहीं होते, कुछ मिनट्स का जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है इन किस्म के शोज में। लेकिन आप अगर कोई मैच देख रहे हो तो वो उसी वक्त आपको पता चलेगा कि जो स्कोर हुआ है वही असल में है, आप किसी से कंफर्म भी कर सकते हो जो उस वक्त बैठा हुआ हो स्टेडियम में। उसमें भी बहरहाल ये है कि ओवरलेस आ रहे होते हैं, इतनी एडिटिंग तो होती है कि आपको स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा होता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट बाकी रियल टाइम एडिटिंग नहीं हो सकती। लेकिन जो ये हामिद मीर का शो है या डिफरेंट करंट अफेयर शोज है उसमें काफी हद तक ये भी एडिटिंग हो सकती है कि थोड़ा सा पोर्शन निकाल दिया, किसी ने कोई बदतमीजी की है तो वहां पे ब्लर कर दिया या वो उसका वॉइस को म्यूट कर दिया, सो ये सारे ऑप्शंस होती हैं। सो इस किस्म के शोज में कोई भी पोस्ट प्रोडक्शन इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, जो कुछ हो रहा होता है वो मोर और लेस रियल टाइम एडिटिंग हो रही होती है। और फॉर डूइंग दैट रियल टाइम एडिटिंग दे हैव दिस स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड एरिया जिसको प्रोडक्शन कंट्रोल रूम कहा जाता है, उसमें डिफरेंट ऑडियो वीडियो मिक्सर्स और पैनल्स होती हैं, वहां पे वो रियल टाइम सारा काम हो रहा होता है। बट जो आपके ड्रामास हैं और आपके एनिमेटेड मूवीज हैं और आपकी ओवरऑल मूवीज हैं या डॉक्यूमेंट्रीज हैं या न्यूज रिपोर्ट्स भी हैं जो कि आप बुलेटिन्स के बीच में देखते हो, उसकी एडिटिंग में आप टाइम ले सकते हो बिकॉज उसमें आपके पास टाइम होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज डन इन द पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके की स्टेप्स में मिक्सिंग एंड डबिंग, जनरली जो कुछ ड्रामाज होते हैं उनमें डबिंग भी होती है, बाद में आर्टिस्ट जो है अगर उनकी वॉइस उस वक्त अच्छी नहीं आई है तो वो डब कर सकती है। एडिटिंग होती है, कटिंग द रिकॉर्डेड विजुअल्स इनटू अप्रोप्रिएट लेंथ एंड अरेंजिंग द विजुअल्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वो सीक्वेंस में शूट नहीं हुए होते हैं, ए रोल और बी रोल मिक्स होता है। ठीक है, सो ए रोल वुड बी कि दो लोग डायलॉग बोल रहे हैं एंड पर्सन वुड से कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे 10 साल पहले ये वादा किया था, और बी रोल में वो जब सीन शूट हुआ होगा पहले जब भी वो वादे वाला सीन, तो वो आप बी रोल उसका दिखा दोगे, तो वो बेसिकली जैसे फ्लैशबैक्स जिनको कहा जाता है। सो दिस इज हाउ दे डू इट ऑन द एडिटिंग टेबल। इसके अलावा रफ कट जरूर बनाया जाता है एज फार एज फिक्शनल शोज आर कंसर्न। तो आपका एडिटिंग जब हो जाती है तो एक दफा सारी सीक्वेंस बेसिकली करके, अभी उसमें ट्रांजिशंस नहीं लगाते, कलर करेक्शन नहीं करते, ग्राफिक्स नहीं डालते, बट जस्ट टू मेक श्योर कि स्टोरी उसी तरह से प्रोग्रेस हुई है जिस तरह से स्क्रिप्ट में लिखी थी, एक रफ कट बनाया जाता है और वो रफ कट जो है वो आपके डायरेक्टर तक पहुंचाया जाता है, वो उसको अप्रूव करता है, तो बाकी उसमें वीडियो इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, सबटाइटल्स की अगर जरूरत हो, कोई अंग्रेजी में बोल रहा हो और उर्दू के सबटाइटल्स दिखाने हो या वाइस वर्सा, तो वो भी चीजें जो है, या जो एंड पे क्रेडिट रोल्स आते हैं कि किसने क्या रोल प्ले किया था, ये सारी चीजें आपकी पोस्ट में डाली जाती हैं। अगर कोई ऑडियो या वॉइस ओवर डालना हो, कोई बैकग्राउंड स्कोर डालना हो, कोई कलर करेक्शन करनी हो, ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली डन ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोडक्शन।
अभी जनरली जो ट्रेंड चल रहा है मीडिया में वो ये है कि जो आपका पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो साथ साथ शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका आपका शूट खत्म होता है आप लोग साथ साथ शुरू कर देते हो और उसके साथ ही आपकी जो मार्केटिंग और प्रमोशन होती हैं वो भी स्टार्ट हो जाती है, स्पेसिफिकली इन मूवीज बिकॉज दे लाइक टू प्रमोट देयर मूवीज अ लॉट, हॉलीवुड में स्पेसिफिकली। सो वो पोस्ट भी चलता रहता है साथ साथ और मूवीज की जो है वो प्रमोशन भी शुरू हो जाती है। सो पहले वो टीजर कट कर देंगे, वो प्रोमो आ जाएगा, टीजर आ जाएगा और यू नो दे वुड स्टार्ट गोइंग ऑन डिफरेंट प्लेसेस टू प्रमोट द प्रोडक्ट और साथ साथ बाकी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चलता रहता है। बट ऑफ कोर्स इफ इट्स अ करंट अफेयर शो तो उसमें ये जो सारे स्टेप्स हैं ये नहीं होंगे क्योंकि ये काम जो है वो उस वक्त साथ साथ ही आप एडिटिंग कर रहे हो। कहा उसको भी पोस्ट ही जाएगा टेक्निकली बट दैट इज हैपनिंग इन रियल टाइम मोर और लेस। सो दीज आर डिफरेंट स्टेप्स। इनको मैंने एंड पे जो है वो सिंप्लीफाई भी कर दिया है और इसी स्लाइड में देयर इज अ वीडियो which is very interesting. It's a short video and it just tells you everything which happens during a production process in like 1 minute or 2 minute per time. So do watch this video. This is very interesting और उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से बताया हुआ है that will you know further reinforce the entire concept in your mind. So this was the production process. Any kind of production, I'm repeating this again and again, चाहे वो एक न्यूज हो, चाहे वो एक लाइव मैच जाना हो टेलीविजन पे, चाहे वो एक ड्रामा बनाना हो, आपने कोई म्यूजिक वीडियो बनानी हो या आप एक व्लॉगर भी और आपने एक व्लॉग बनाना हो, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपकी प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी प्रोडक्शन होगी। जरूरी नहीं है हर प्रोडक्शन में हर चीज ही हो, जो मैंने की स्टेप्स लिखे हैं कुछ मिसिंग हो सकते हैं बट मोर और लेस ये स्टेप जो है वो जरूर फॉलो किए जाते हैं किसी भी किस्म के प्रोडक्शन में। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्पेंड टाइम इन द प्री प्रोडक्शन फेज, रिसर्च फेज, प्लानिंग फेज, दैट विल मेक श्योर कि आप सही तरीके से अपना शूट पे जाओगे तो आपको ऑलरेडी क्लैरिटी होगी। शूट पे जाके आपने जो काम करना है वो हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छी रिसर्च भी की हो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑन द डे ऑफ द शूट ही पता चलती हैं। आप ऑन लोकेशन गए हुए हो, आपने नहीं प्रिपेयर किया है लेकिन वहां पे बारिश हो गई है, सो डेफिनेटली उस दिन शूट कैंसिल होगा आपका। तो ये चीजें सारी शूट में देखनी होती है। शॉर्ट कंपोजिशन को चेंज करना है, कुछ इम्प्रोवाइज करना है, ऑल ऑफ दैट हैपेंस ओवर देयर एंड फाइनली योर पोस्ट प्रोडक्शन वेयर यू गिव अ शेप टू योर एंटायर प्रोडक्ट एंड यू नो ट्राई टू मेक इट एज presentable as possible.